A very, very good morning to all of you here. Namaste, and thank you for being here. The first thing I would like to say to everybody, and thank you for all the hearts and the introductions and the hellos that we are receiving. First thing, before I get started with anything else, the people who have raised their hands, the raise hand feature within Meet, I am assuming that you have a question, and that's why you've raised your hand. And if there's a question, please write that in the chat box because it can get a little confusing. And just in case somebody is assuming raise hand means that your attendance is being marked, it's not so. Just in case if you're thinking that. So yeah, as I said, if there is a question, if there is something, if there's a query that you might have, if there's any doubt that you might have, please do write it in the chat box. Our eyes are on the chat box, will be on the chat box throughout the session. In fact, there's also a Q&A feature that has been opened up in this Google Meet. If you can just start working, start putting in your questions there itself, we'll take those up as well. Yes, absolutely. This Meet session is being recorded. This will be shared with you later. This will be shared with the people who had registered. This will be shared with the people who are participating right now. So thank you. Thank you so much for being here. And thank you so much for all the introductions. I know I'm asking for too much, but will it be possible for you all to have your cameras on as well? Because see, it'll be nice to see who are we dealing with, who's our audience today. It'll be nice to know the person behind the laptop who's sitting. So if possible, and I completely understand if you're in school or if you're in bed on a Saturday, if it's not possible to turn on the camera, it's perfectly fine. But please do turn it on if that's possible. And we'll also take a customary group picture at the end of the session. So if you're in bed right now, get ready in another hour. We'll take a picture soon. All right, so we'll begin our session for the day. Thank you for all the introductions. I can see a lot of you, from different schools, from different cities, who are here. And one small thing I'm going to say right here, because I've been speaking in English since I started. The session today will be a bilingual session. It will be a mix of English and Hindi. तो अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो राइट एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन और ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि सेशन ज्यादा इंग्लिश में होना चाहिए या ज्यादा हिंदी में होना चाहिए, तो प्लीज कीप राइटिंग दैट फीडबैक. इस तरीके का कोई भी आपको फीडबैक हो बीच में, we'll definitely take that up. Otherwise, it will remain to be a bilingual session throughout the next 1.5 hours. And let me quickly start with the introductions, and then we can get started with the session itself. Of course, Deepti ma'am, if you're right here, say a hello. And I'm sure a lot of us right here already know her. So Deepti ma'am, over to you. Good morning, everyone. And I can see a lot of familiar faces here. So thank you so much for being part of this. This is something which I feel will empower the teacher behind the IT admins, because most of the times we keep waiting for your IT admin karega to hoga. So I think this is a session where you also get empowered to say, IT admin, mujhe malum hai ye hota hai, isko karo. So here's hoping that we have lots of fun today. Over to you, Vibha. Thank you. All right. Thank you so much. And I'm Vibha. For the ones who are not aware, I'm a Google certified trainer. I'm the EdTech manager here with Mahatattva. And I'll be here with you through the session. And of course, our lead trainer for today is Mr. Abhishek. Abhishek, I don't see your camera on. Is it on? Since I don't see you, if you can just say a hello, your tile will pop up. I will give a quick introduction about Abhishek for the ones who are here with us today. So he is, a super experienced IT expert. He's been in this field for a really, really long time. He's worked in the education sector. He's worked in the healthcare sector, and he's worked, behind the cameras. His career is spanning over a big span of like 14 years. बहुत सारा काम, whether it's government sectors, private sectors, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है behind the camera at the IT admin sector. So he is, he's also working with a lot of, I can't name them, but he's also working with some really top government projects in our country right now. So we are really, really happy to have him.
and Abhishek will be the one who will be leading the session today. I am right here with him for any assistance that he might require. Abhishek, if you can. He's just joining back. Okay. He's having some audio. Yeah, No I see he's worries. back. Yeah. No worries. Abhishek, are you there? Yes. Acha, he has left the. Okay, let's wait for another minute. That's completely fine. He'll be back soon. We can get started in another minute. That's absolutely not a problem. Just one small thing. In fact, two small things that I have to share with you. One thing is, at the end of the session, there will be a feedback form that will be shared with you. Please make sure you fill in that. Reason being, वो feedback form fill करने के बाद आपको आपका participation certificate मिलेगा. Secondly, जो resources हैं, all the things that we're talking about today, जो भी resources हैं, all these things will be shared with you. The whole slide deck will be shared with you as it is. So if you're a person who learns better by writing and anything of that sort, please feel free to do that. But there's no compulsion for you to make notes because the whole content will be shared with you after the session. So please make sure you fill in that feedback form. Apart from that, जैसे आज का session is focused on the IT admins, the back-end work. We have another session coming up in the next week, which will be focused on teachers, which will be focused on what can Google Classroom do for teachers, right? In fact, I am right now also going to share the registration form for that session. So if you haven't registered for that session, it's on the 26th of September, which is the Thursday in the next week. If you haven't registered for that, please make sure you register for that as well, so you can join in that as well. That's also in the evening. School hours के बाद आप आकर join कर सकते हैं. Deepyam, please. Yeah. Hi, Vibha. I think Abhishek is back. Okay, lovely. Abhishek, can you hear us? Yeah, it's audible now. Good morning, everyone. Yeah, I'm audible. Yes, absolutely. Sorry, there's some issue with some browser and all, so there's the challenges. So good morning, ma'am. Good morning, Viva. Good morning, everyone. So welcome to this one more new session in the Google Workspace, mainly for the teachers and the IT admins both. कि IT team और जो teachers हैं दोनों एक साथ काम करके कैसे benefits कर सकते हैं students के लिए, school environment के लिए, सबके लिए. That's a benefit for the all. So जैसा कि विभा जी ने बताया था कि जो आज का हम लोग का पर्सपेक्टिव है कि क्लासरूम में एडमिन पार्ट को कैसे यूज करके और बेनिफिट कर सकते हैं, हाउ दे हैव टू बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं. वी हैव अ डिजिटल इंडिया, वी हैव अ टेक्नोलॉजी एंड ऑल. तो अगेन अ क्लासरूम एक टेक्नोलॉजी पार्ट है जो बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स हैं, के साथ साथ टीचर्स के लिए भी काफी काम आसान कर दिया है आफ्टर द कोविड टाइम. जो पहले हम लोग डरते थे कि वर्चुअल क्लासरूम कुछ नहीं हो पाएगा, बट आफ्टर द कोविड इज टू बेटर. अब घर घर पहुंच चुका है, सबको पता चल गया कि क्लासरूम वर्चुअली भी क्रिएट हो सकता है. एक कभी मिथ था कि हाँ सिस्टम पे नहीं जाना है, तो वो तो देयर आर टू पार्ट्स. एक जो आपके सामने रहते हैं, तो जो सब जानते हैं कि दे आर द टीचर्स जो क्लासेस लेते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं. एंड द स्टूडेंट्स जो फ्यूचर हैं, अपार्ट फ्रॉम कुछ पर्सन होते हैं जो बैक एंड पे होते हैं, जो अपना काम डेडिकेटली करते हैं, सब करते हैं लाइक अ टीचर्स. की सेटअप कैसे होता है कि क्लासरूम में फीचर्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स, तो वो चीज़ एडमिन पार्ट कंट्रोल करता है. तो आज का जो हम लोग का एक जो सेशन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देयर आर टू पार्ट्स. वन SIS इंटीग्रेशन का पार्ट है, जो कि आपकी जो डे टू डे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह है वो काफ़ी आपका इजी बनाएगा, इजी टू लाइफ, क्योंकि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 40 है, ग्रेडिंग सिस्टम, चेकिंग द आंसर शीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर डन वी हैव टू वर्चुअली थ्रू अवर क्लासरूम. Apart from this, there are the multiple new features those are recently launched in India. वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. उनको इनेबल कैसे करेंगे, उनकी क्या प्री रिक्विजिट है, वो कैसे करेंगे, एंड जो चैलेंजेस आते हैं टीचर्स को, इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को एंड IT टीम को, उनको भी वी हैव टू एड्रेस. एक एक करके पार्ट लेके चलेंगे. तो स्टार्ट विद द SIS इंटीग्रेशन. SIS इज अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ना कि जो हम लोग को वैन दिखती है रास्ते में काफी बार ट्रैफिक पे जो कैश लेके जा रही होती है. देयर इज नॉट अ दैट SIS. This is a student information system integrations
that is for our classroom, because यहाँ पे we have completely education system के लिए how it's set up within the classroom, and admin जितने भी हम लोग के IT team persons हैं वो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड हाउ इट्स यूजफुल। तो इसका एक पार्ट है। तो स्टूडेंट SIS, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन, दैट में इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो हम दो सिस्टम को एक साथ कंबाइंड कर रहे हैं। तो सिस्टम को अगर हम दो जगह को कंबाइन कर रहे हैं तो दैट्स वी कॉल्ड इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशंस होगा आपका क्लासरूम का, और जो डिफरेंट डिफरेंट SIS एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं दोज आर कंपेटेबल द गूगल क्लासरूम्स, उनको हम कैसे ऐड ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन का, स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, हम लोग होता है एक टाइम टेबल काइंड ऑफ थिंग्स होता है। तो एक टाइम टेबल होता है, रोस्टर्स होता है, दैट्स वी हैव टू क्रिएट। इसके अलावा टीचर्स ग्रेडिंग सिस्टम काम करते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम्स का कैसे क्या होता है। उसके बाद मार्किंग स्कीम होती है, स्कूल्स की अपनी अपनी एक मार्किंग स्कीम होती है। दे आर द डिफरेंट स्कूल्स यहाँ पे जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ से CBSE भी होगा, स्टेट बोर्ड्स भी होंगे, इंटरनेशनल बोर्ड्स भी होंगे। They follow the different curriculum, they follow the different grading schemes, they have marking schemes and all. So there's a challenges for all. कुछ स्कूल्स की जो पेडागोगी है वो डिफरेंट होती है, हर चीज का डिफरेंट होता है। तो हाउ ITs will help you out in the single click कि आज आप IB करिकुलम यूज कर रहे हैं फॉर द, और उसके साथ आप CBSE भी कर रहे हैं, तो जस्ट फॉलो द टू थिंग्स। तो हाउ टू रोल आउट द दोस थिंग इन अ इजी वे, तो वो चीज है। तो यहाँ पे आई विल टेक अ हेल्प ऑफ विवा। सो यहाँ पे एक टूल है दैट्स नोन एज अ पावर स्कूल, इट्स अ थर्ड पार्टी ऐप एड ऑन जो कि गूगल के थ्रू ऑथराइज भी है। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गूगल के थ्रू एड ऑन ऑथराइज है। इसका क्या मीनिंग है, इस चीज को थोड़ा सा मैं लास्ट में रखूंगा कि इस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा कि व्हाट्स ऑथराइज, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पावर स्कूल। पावर स्कूल इज वन ऑफ द SIS टूल जो आपका SIS के फीचर्स को इनेबल करता है, आपका एक्सपीरियंस क्लासरूम को बढ़ाता है। तो पावर स्कूल को कैसे इनेबल करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए एक प्रीरिक्विजिट होगा कि IT टीम होगी, दैट्स लॉग इन विद देयर एडमिन कंसोल। सो मैं विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन वी गो फॉर अ एडमिन कंसोल, फ्रॉम देयर दे हैव टू गो फॉर अ क्लासरूम, दैट्स इन द ऐप सेक्शन। इसमें गूगल वर्कस्पेस रहेगा जिसमें एक ऐप रहेगा क्लासरूम। आप क्लासरूम पे जाएंगे, एडमिन्स, लॉग इन। सो जैसा आपने कहा कि वेरिफिकेशन एंड कॉल है, तो इट्स अ टू स्टेप काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन टू जस्ट प्रोवाइड अ मोर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक मैं करूँगा, तो इट्स आल्सो एक वन ऑफ द कॉमन बेसिक फीचर्स जो आपको टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा। जैसे कि ये जिस भी स्कूल या डोमेन पे तो उन्होंने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन किया हुआ है टू प्रोवाइड अ मोर सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई वो आपके पास एक ऑप्शन है इसकी वजह से। तो मैं साथ में बता दूंगा। तो आफ्टर द क्लासरूम on the right hand side you have to go down, class settings, just go down, SIS integration, select this option, choose your admin account. After that there's a screen, just be hold for a few seconds viewer. So connect your MIS to classroom, yani information system, so master's class. So there's a collaboration with them. That's clearly mentioned. Once connected, user can exchange information between Google Workspace, Google Classroom, and SIS. That is, there's a three different stakeholders. Google Workspace that we are using. There's a one app that we call the Classroom, Google Classroom. That is we are using, and third one is the SIS. That's a student information. So it's an integration kind of. So also we have to emphasize the one more point here कि जो ये वाला पार्ट है SIS इंटीग्रेशन है, इट्स अवेलेबल विद द एजुकेशन प्लस और द टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड लाइसेंसेस के साथ। अगर कोई भी स्कूल स्टैंडर्ड लाइसेंस यूज कर रहा है, गूगल का बेसिक लाइसेंस यूज कर रहा है, उसके साथ SIS का अभी फीचर्स अवेलेबल नहीं है कि अगर कुछ एडमिन्स अभी लॉग इन कर रहे होंगे या आफ्टर दिस सेशन लॉग इन करेंगे एंड दे हैड ट्राई टू दिस पर्टिकुलर फीचर, वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर दैट it's a mandatory that
कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 लाइसेंस होना चाहिए एजुकेशन प्लस का, या टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से आप कोई सा भी एक लाइसेंस लेते हैं या इसका हायर वर्जन लाइसेंस, एक सिंगल लाइसेंस लेते हैं, तो यू आर एबल टू यूज दिस फीचर। सो यू हैव टू जस्ट गो बैक एंड select your MIS. So there are the multiple options for the MIS. So we have to select a Power School because Google have authorized for the Power School. They have an integration and all. Just then click on the continue button. After that, you have a IT expert admins, so they have to just click on the connect button. But also you have to host URL. What's your host URL for the MIS? Access key, secret code. From where we have to grab. So just click on the cancel button, ma'am. Have to just click on the learn more. So they are the parts. So they are the few informations that are required at an admin level. After that, we have to integrate all those things. What's the secret code? There's a secret key for all the Google Workspace accounts. There's a host URL. So where are your host URL? It's a Google or the different or GoDaddy where that's hosting. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं समझ सकता हूँ कि काफी टीचर्स के ऊपर से जा रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूंगा। तो जैसे सीक्रेट की एंड एक्सेस कीज होंगी, वो वहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करना होगा, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड। सो रिक्वेस्ट टू जस्ट गो बैक टू द एडमिन कंसोल। वंस यू हैव टू डू ऑल दोज सेटिंग्स, एडमिन जो आपके हैं वो ये सारी सेटिंग कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन डन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके जो फीचर्स हैं पावर स्कूल के जो डिफरेंट है, फॉर द रोस्टर क्रिएशन से लेके आपका स्टूडेंट अटेंडेंस, एवरीथिंग एल्स, ग्रेडिंग सिस्टम को इंपोर्ट करना, सारा चीज वो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। फॉर दैट आपका जो लिंक होगा वो गूगल क्लासरूम वर्कस्पेस से निकल के पावर स्कूल के डैशबोर्ड पे चलाएगा। देयर आर सेपरेट पोर्टल काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। दैट्स एक्सचेंज बिटवीन द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे APIs जैसे हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू ये आपका हो जाएगा। So we have to just go back to the slides. So there is a one hand raised by the Dr. Deepika ma'am. So ma'am, we have a 2 minutes break for the question answer sessions. Yeah, ma'am. Ma'am. Okay, so sorry. Yeah. I'll just butt in here. If there are any questions, please, अगर आप देख रहे हैं तो there's a Q&A feature that has been enabled in the Google Meet. We will request you all to, since it's a large group, हम लोगों ने mic का access off किया हुआ है. That's why you're not able to unmute yourself. So if you can just please write your questions in the chat box or the Q&A feature, that will be very, very helpful. Abhishek's eyes are going to be on the Q&A feature. तो आप जो भी questions आपको ध्यान आ रहे हैं, please go ahead. At the end of the session, we are going to open the mic and we are going to let you, have any kind of verbal conversation that you might want to have with Abhishek. Till then, if we can request you to please keep writing your questions in the chat box or in the Q&A window, ताकि अभिषेक को जो भी questions आपके दिखते हैं वो he can start addressing. And there was one little thing that I wanted to address right here with your permission, Abhishek. One small thing, because this is a question that I get a lot from a lot of schools, a lot of teachers. आप लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि अच्छा हमारे पास तो EduPlus फीचर्स है ही नहीं, टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड फीचर्स है ही नहीं, and convincing the school, convincing the management to get licenses for all of my 1000 1200 students, जो भी आप लोगों की स्कूल की स्ट्रेंथ है, it's not easy and we completely understand it's not easy. हर स्कूल के अपने बजट्स होते हैं, हर तरीके के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. Please remember, you have the option to buy a few licenses. जैसे अभिषेक ने अभी कहा कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए. So if you are interested in exploring these features, you can try to think of something along the lines of, अगर आपके स्कूल में समझ लीजिए 100 टीचर्स हैं, तो आपने कुछ 15 या 20 लाइसेंसेस ले लिए, या फिर जितने IT एडमिन्स हैं उनके लिए ले लिए, जितने IT टीचर्स हैं उनके लिए ले लिए, या फिर जितने HODs हैं उनके लिए ले लिए. थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स पैटर्न, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल सिस्टम, आप कुछ लाइसेंसेस भी खरीद सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको सबके लिए लाइसेंसेस खरीदने हैं. तो आप कुछ लाइसेंसेस, 10 लाइसेंस, 15, 20 लाइसेंस खरीद के थोड़ा सा ट्रायल कर लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए. दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन दैट्स अवेलेबल फॉर एनीबडी who's interested in exploring this. So lovely. Thank you for sharing that, Kamlesh sir. So DPS Nashik, they have 15 licenses for teaching and learning upgrade, and I'm sure कुछ licenses IT admins के पास होंगे जिनके पास admin roles हैं. अभी अभिषेक will talk about admin roles in detail.
So please, this is something that you can definitely try, and if you're interested in getting a few, we can most definitely help you with those. I do not see great DPS Varanasi also lovely. I do not see any questions. As I said, किसी को कोई questions है तो please chat box में या फिर Q&A में लिख दीजिएगा. Abhishek, since we don't have any questions, I think we'll move on. Yeah, sure. So जैसा कि विभा जी ने बताया कि नॉर्मल क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन कि अच्छा ये फीचर यूज करना होगा, वी हैव अ एक्स नंबर ऑफ यूजर्स. तो मैंने जब बता रहा था कि एटलीस्ट आपको मिनिमम एक लाइसेंस चाहिए. आप एक लाइसेंस है उस पर भी आप फीचर्स को यूज कर सकते हैं. यू हैव टू डिस्कस विद योर एचओडीज. देखिए उन्होंने बोला हर स्कूल का स्ट्रेंथ अलग है, हर स्कूल का कंसेप्ट अलग है, हर स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग है. कोई प्ले ग्रुप होगा, कोई क्लास 10th होगा, कोई 12th होगा. दे हैव डिफरेंट बोर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. दे आर द सम केवीज, के एनवीएस, तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. दे आर द आईबीज, इंटरनेशनल स्कूल्स. तो किसी के पास एक लाइसेंस है, दे हैव टू मेंशन द 5 लाइसेंस, द 15 लाइसेंस. सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कितना लाइसेंस लेने के, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. तो यू हैव टू जस्ट गो आल्सो गो विद द सिंगल लाइसेंस. यू हैव टू यूज टेस्टेड विद द एचओडीज as a teachers, principal, HODs, your director boards, ki what's the features if we have to go with these licenses, and what's the features, because also as a technology every time it changes, so we have also moved with the technologies and all. जैसा ही मैं स्टार्टिंग में कहा था कि we are not thinking about that कि हम as a virtual collector, but we are now connected virtually. So you have to go the things, you have to go the features and more insight about the things. So you have to just plan accordingly. It makes your life easy. Technology makes your life easy, and वो पार्ट लेंगे तो वो भी एक easy रहेगा. And you also understand the thing कि ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा, रोस्टिकेशंस में क्या होगा, व्हाट्स द इजीनेस यू फॉर. अदरवाइज एक स्कूल को पूरा क्रिएट करने में सब चैलेंजेस आते हैं. तो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, हाउ टू सेट अ डिफॉल्ट ग्रेडिंग सेटिंग्स फॉर एजुकेटर्स एंड ऑल. सो अभी तक ये होता था कि हर एक टीचर्स अपने अपना ग्रेडिंग सिस्टम ऐड कर रहा था कि ग्रेडिंग, यहाँ पे ग्रेडिंग से मतलब क्या है. ग्रेडिंग मींस वी हैव टू प्रोवाइड अ ग्रेड और सम मार्क्स टू आवर स्टूडेंट्स. सो इट्स अगेन रिलेटेड टू क्लासरूम. हम एक देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेड सिस्टम है, 5 मार्क्स दे दिया, 10 मार्क्स दे दिया, तो हम लोग को मैनुअली करना पड़ रहा था अभी तक टीचर्स का. तो दिस इज अगेन एक पेन एरिया कि मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल मार्क करना इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ पेन एरिया. हाउ वी हैव टू रिजॉल्व विद दिस न्यू फीचर जो कि अभी अवेलेबल आ गया एडमिन के थ्रू, कि वो क्लासरूम्स के लिए ग्रेडिंग सिस्टम्स को भी इनेबल कर देगा सिंगल क्लिक, ताकि टीचर्स का जो पेन एरिया है कि हैव टू रिवर्ट टू बैक टू द स्टूडेंट्स देयर असाइनमेंट्स एंड ऑल, नॉट टू डू द इंडिविजुअल. बस आपने सबमिट किया, यू हैव टू रिटर्न द स्टूडेंट्स, तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग सिस्टम उस पर अलाउड हो जाएगा जो आपने प्री डिफाइंड सेटिंग्स किया होगा. हर सब्जेक्ट्स का अलग होगा, तो यू हैव टू कस्टमाइज ऑल दोस सब्जेक्ट वाइज आल्सो. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में भी क्या होगा कि वो आपका OU वाइज रहेगा. OU इज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट वी हैव टू गो विद द लास्ट, कि हर क्लास का अलग होगा, हर सब्जेक्ट का अलग होगा, तो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. सो हाउ वी हैव टू इनेबल, हम ग्रेडिंग सेटिंग्स को कैसे इनेबल करेंगे फ्रॉम द बैक एंड टू द एंटायर स्कूल, एंड उसके लिए तो विवा कैन वी हैव टू जस्ट गो विद दैट सर. तो हम जो से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे, लाइक ग्रेडिंग पीरियड्स, ग्रेडिंग स्कोर्स एंड ऑल, तो उसके लिए भी तो वी हैव टू जस्ट गो फॉर द एडमिन कंसोल. फ्रॉम देयर वी हैव टू जस्ट गो फॉर द क्लासरूम्स. अंडर द क्लासरूम सेटिंग्स, तो वी हैव अ default grading settings. So under this we have a marking periods. It's a mark periods. Thus you have to go for a grade 1. So you have two marking periods, and what's the benefit of the marking periods? Why we have to do that? कोई फीचर आता है तो we have a challenges कि ये फीचर क्यों है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा. व्हाट्स द रीजन इज फॉर द मार्किंग स्कीम एंड द पीरियड, कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिख दिया. व्हाट्स द मार्किंग पीरियड्स? मार्किंग पीरियड्स का सिंपल है कि हर एक स्कूल का एक स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम होता है. सो उसको सेम मार्किंग स्कीम पूरा स्कूल फॉलो करे, उसके लिए मार्किंग स्कीम है कि मैं एक मार्किंग स्कीम ग्रेड सिस्टम पे जा रही हूँ, परसेंटेज पे जा रही हूँ, किस पे जा रहे हैं. और जैसे पॉलिसीज चेंज होती हैं, एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती हैं, ऑलमोस्ट 5 years में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें उन्होंने कहा कि ना वोकेशनल और लाइफ स्किल्स सेटिंग्स ज्यादा होनी चाहिए. तो दैट्स अ मोर काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स.
तो अगर हम अपना पुराना ही ग्रेडिंग सिस्टम है सबको लेके चलेंगे, उसमें हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता था, आज के टाइम पे मैथ्स में प्रैक्टिकल है, तो वी हैव आल्सो क्लब दैट्स द मार्किंग पीरियड्स। सो मार्किंग पीरियड के किस टाइम से किस टाइम के लिए है और क्या हमारा ड्यूरेशन है। तो मार्किंग स्कीम होता है टू जस्ट सेव अ टाइम यूनिफॉर्मली दैट वी हैव टू यूज फॉर द मार्किंग स्कीम। So this is one of the latest addition in the classroom. Before the first half of this year, it's not available. It's a latest addition for this year. Yeah. So here you have to just make a mark period. You have to mention कि आपको क्या करना है, जैसा आपको जो भी करना है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म और वोट, और किस डेट से किस डेट के लिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ डिफॉल्ट वन। सो अभी जो भी सेटिंग्स हो रही है हम स्कूल लेवल के लिए हम बता रहे हैं ऑन द लेटर ऑन कि हम डिफरेंट क्लासेस स्टैंडर्ड्स के लिए कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टू कवर आल्सो लेट। सो ओके, गिव मी 1 सेकंड प्लीज, थोड़ा सा मेरी तरफ लैग हो रहा है, द मंथ इज नॉट विजिबल। जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट अभिषेक सेड, आप अगर ग्रेडिंग पीरियड्स का मतलब it could be as basic as, so in a first term, so in general in our Indian schools we have our year divided into 2 parts, first term and second term, right? And there are a lot of assessments, there are a lot of assignments that go in the first term, जो आपको first term जब रिपोर्ट कार्ड बन रहा होता है, जो आप लोग अभी शायद बना रहे होंगे, और भागा दौड़ी चल रही होगी अभी पेपर करेक्शन खत्म करने की। सो अगर वो वाली जो चीजें होती हैं, when you have to define that this is these assignments, these tests should go under first term, these tests should go under second term. So इससे क्या होता है, मैंने 2024 कर दिया, हाँ। So इस ग्रेडिंग पीरियड से क्या होगा कि मैं जो जो असाइनमेंट्स दूंगी एज द टीचर, नाउ एडमिन ने बैकएंड से ये सेट कर दिया कि सेकेंड टर्म इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल द 31 मार्च, राइट? नाउ टीचर जब अपने क्लासरूम में असाइनमेंट को भेजेगी, पोस्ट करेगी, तो दे विल यूज दिस मार्किंग पीरियड, जब वो कि ये वाली असाइनमेंट बिलोंग्स टू दिस मार्किंग पीरियड, ताकि अगेन एंड ऑफ द टर्म जब वो रिजल्ट कंपाइल हो तो दीज असाइनमेंट्स नो वेयर टू गो। अच्छा, ऐसा ना हो जाए कि पहले जो अगस्त में दी हुई असाइनमेंट आपके सेकेंड टर्म में काउंट हो जाए। इट्स जस्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन the first term and the second term, the different assessments, the different assignments that are going out. Okay, Abhishek, this and of course as he mentioned already कि यहाँ पर marking period में और भी add कर सकती हूँ. So start of the year I can have 2 marking periods. In fact, there are some schools who work on a quarter basis कि quarterly reports जाते हैं school में. There are some IB schools that work along these lines. So you can have 4 marking periods. You can have 2 marking periods at the start of the session and let the teacher decide कि कौन सा assignment कहाँ जाता है. In fact, a lot of times it also happens कि अप्रैल में टीचर ने एक प्रोजेक्ट दे दिया है, कुड बी अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काइंड ऑफ सिचुएशन, एक पीबीएल आपने अप्रैल में असाइन कर दिया, उसका सबमिशन डेट नवंबर में है और उसकी जो असेसमेंट होनी है वो सेकेंड टर्म में होनी है, फाइनल टर्म में होनी है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू राइट हियर इज, आप टीचर ने असाइन तो कर दिया वो पीबीएल इन द क्लासरूम इन अप्रैल इटसेल्फ, बट इट गोज अंडर द सेकेंड टर्म। तो ये नहीं होगा कि टीचर जब फर्स्ट टर्म का रिपोर्ट कार्ड करने बैठेगी तो इट विल नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन कि ओहो ये वाला भी काउंट हो गया या फिर बच्चे का ब्लैंक दिखा रहा है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट will happen at the teacher's end. I'm so sorry, Abhishek, please go ahead. Yeah, no, sure. So you have to save this one. So you have to go for the next point, ki how is the calculation and there are different kind of categories. So आप कहेंगे calculations and categories आपकी क्या क्या different है. So you have to just on for the same again, click on. So यहाँ पे आपके पास marks calculations का जाएगा कि आपको no overall marks करना है, कि आपको केवल होते हैं ना, there are few subjects जो आपकी एक्टिविटी बेस है, उसमें आपको कोई ग्रेडिंग सिस्टम, कोई मार्क्स नहीं करना है. अगर आपको करना है तो देयर आर 3 डिफरेंट 3 ऑप्शंस कि आप उस लेवल पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कैन यू सिलेक्ट ऑन दैट वन, नो ओवरऑल मार्क्स वन, मार्क्स कैलकुलेशन. या सो देयर आर 3 टोटल पॉइंट्स वेटेज बाय कैटेगरी. अगर आप टोटल पॉइंट्स करेंगे तो आपका एक पॉइंट्स मार्क्स का आ जाएगा कि इतने पॉइंट्स में से आना चाहिए. अगर वेटेज बाय कैटेगरी लेते हैं तो द थर्ड ऑप्शन, तो उसमें आपकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी कि आपको क्या कैटेगरी रहेंगे, आपको मार्क कैटेगरी भी ऐड करनी पड़ेंगी.
अगर आप इसको ऑन करते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए तो मार्क कैटेगरी भी करनी होगी कि आपका मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेगा, कि अप टू 100% है क्या, जो भी होगा आपका टोटल वो अप टू 100% के रहेगा। तो वो मार्क कैटेगरीज को भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, कि जैसे होता है कि कहीं पे 33% के लिए ऑन है मार्क्स मिनिमम है, कहीं पे आपका 20% आएगा तो 30, कहीं पे 30% के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होता है, कहीं पे आपका डिफरेंट पार्ट्स पे होता है, तो वो भी आपको परसेंटेज को वेरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपका 80-20 का ब्रेकअप है, बट यहाँ पे अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में जाते हैं 70-30, अगर आप ड्राइंग्स वगैरह पे जाते हैं तो इट्स मे बी 40 थियरी एंड 60 प्रैक्टिकल, सो इट्स अ डिफरेंट इज अ थिंग। So you have to just add a mark category and you have to save it. So for now, so you have to save, तो ये आपके पूरे schools के लिए apply हो जाएगा। So next we have to go for the or the settings one by one. Marking scales. Click on the marking scales. तो select as default to all the news classes. So जो भी यहाँ पे हम settings कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी एक चीज और on है, तो यहाँ पे already clearly mention है select a marking scale with auto apply to new classes. तो जितनी भी नई क्लासेस बनेंगे उनके लिए तो डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो ओल्ड क्लासेस है उनका क्या है, उनके लिए यू हैव टू मैन्युअली डू द फ्रॉम योर सेटिंग्स पास। सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेज है, प्रोफेंसी हो गया, लेटर मार्क्स हो गया, 4 पॉइंट स्केल हो गया। तो एक्सीलेंस है, किस लेवल पे एक्सीलेंस है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, या आप इसमें अदर ऐड भी कर सकते हैं, या आप अपना अनदर लेवल करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे डिफॉल्ट लेवल्स आपको दिखा दिया कि प्रोफेंसी आपका एक्सीलेंट है, यानी एक्सीलेंस का मतलब हो गया नॉर्मल ग्रेडिंग स्कीम में होता है कि 90% आपका इतना होना चाहिए, आपको पास फेल क्राइटेरिया या सेटिस्फैक्टरी है, तो वो चीज भी यहाँ पे आपके लिए इजी हो गई है। मार्किंग स्केल्स कि आपको एक्सीलेंट करना होता था, वो सब मेंशन करना था, वो नहीं है। इसके अलावा आपको अपनी मार्किंग स्केल करना है, तो ये फीचर भी इसमें है कि आप उसको भी एड ऑन कर सकते हैं, योर कस्टमाइज वन, दैट यू हैव ऐड वन मोर लेवल। ऐसा नहीं है कि आप 4 लेवल है कि सर यहाँ पे तो 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ऐड लेवल भी आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा एक ऐड लेवल करना है। इसके करने के बाद जो भी आपके मार्क्स क्राइटेरिया है, 90 करना है, 80 करना है, तो यू हैव टू चेंज इन ऑल दोस थिंग्स, तो आई हैव टू से So while you're waiting for this, Abhishek and Vibha, I'm just requesting people that whatever queries they have, they should put it in the Q&A feature, and Vibha, I will request you to answer those questions when you take a Q&A break. For sure. sure, yeah. So you have to just go down for the more settings for the classroom. Those are introduced recently. Just go down in the default grade settings में थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे। ग्रेड सेटिंग्स में अभिषेक कहाँ पर? हल्का सा नीचे। Okay, that's the end of Okay, so this is the end for the marking periods and all the scales. तो ये आपका एक हो गया कि आपका periods marking scheme यूनिफॉर्मली के लिए बेनिफिट्स क्या है इसके, कि आपका यूनिफॉर्मली, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक यूनिफॉर्मली हो जाएगा। आपको किसके अकॉर्डिंग करना है फॉर द एंटायर सेशंस, हाफ ईयरली, सेकेंडरी, या आपके स्कूल नीड की बेसिस पे, दैट शुड बी यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर कुछ अपनी मार्किंग स्कीम ले रहा है, कोई टीचर अपना अलग मार्किंग स्कीम ले रहा है। तो यूनिफॉर्मली और सेव टाइम, दिस इज अ मेन, दैट्स अ की टेक अवे फॉर द दिस पार्ट। So this is the thing. So we have to back to the presentations. So any questions? So we have to. We do have a question. One little thing that I'll add on to what Abhishek has just said. अगर आप कुछ try करना चाहें, जैसे हो सकता है आप at any point you feel like, okay, as the admin I want to start with these settings, and you are quickly googling and finding out कि ये setting को कैसे करते हैं. Grade setting and I'm so sorry, I'll use the correct word. Grading scale and marking scale is the same thing, क्योंकि आपको काफी सारे YouTube वीडियोस मिलेंगे जहां पर लिखा होगा Google Classroom grading scale. जो आपने अभी अभी देखा, इनफैक्ट आई कैन टेक यू बैक, जो आपने अभी अभी देखा, दिस वाज रिटन एज मार्किंग स्केल. सो वो सेटिंग इज द सेम थिंग, अगर आप कुछ YouTube वीडियो से सीख के करना चाह रहे हैं. सो जस्ट अ लिटिल क्लैरिटी राइट हियर.
यस दैट विद द इम्पोर्टेंट, वरना कहेंगे कि हमें ग्रेडिंग स्किल्स मिल नहीं रहा, तो exactly. हमने दोनों चीज को लेके चले हैं इसीलिए Absolutely. ये है। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी Yes. हैव टू सीन जब हम लोग का सेशन चल रहा था। तो वन क्वेश्चन था कि ये बेसिक फंडामेंटल में अवेलेबल है, सो सॉरी सर, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द फंडामेंटल वन, so you have to go with the education plus or the learning and teaching grade one. Can we see all other questions? Kamlesh sir is asking, can we do this for all accounts now? Sir, all accounts in the sense you mean for all teachers accounts अपने admin console से? As he mentioned, DPS Nashik has teaching and learning upgrade. तो आप सारे अकाउंट्स के लिए ग्रेडिंग स्केल्स अपडेट करना चाह रहे हैं सर? थोड़ा सा अगर हमें बता सकें व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यस एग्जैक्टली। And I'm sorry, I don't know your name IT analyst. It will be nice if I get to know your name. But what SIS I need to connect to? आप पूछ रहे थे अभिषेक, that's the question. हाँ, so by default जो आपने देखा था जब हम लोग प्रेजेंटेशन से गए थे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने देखा था, तो दे हैव टू रिकमेंड अ पावर स्कूल। बट जब आप SIS इंटीग्रेशन के पेजेस पे गए थे, दे आर द डिफरेंट ऑप्शंस। आप उन ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं बिकॉज they are the recommended by the Google. Power schools के साथ they have a better connectivity and the lots of features for the different apex regions. जो हम लोग का रीजन आता है वो साउथ एशिया रीजन्स में आता है एंड ऑल, तो उसके लिए आप पावर स्कूल करें। इसलिए मैं थोड़ा सा कमेंट कर रहा था क्योंकि वो एज अ इंडियन इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग दे मेंशन द पावर स्कूल। अदरवाइज आप अदर को भी ट्राई कर सकते हैं एंड जस्ट रिमूव द इंटीग्रेशन पार्ट लेटर ऑन। तो उसके लिए कि दे आर 5 or 6 इंटीग्रेशंस जो उन्होंने मेंशन किया। तो आप देयर आर 2 थिंग्स कि अगर हमें काफी है तो दिस लिटिल बिट काइंड ऑफ बोर हो जाएगा बिकॉज लॉट्स ऑफ नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड एंड द टीचर्स देखे कि क्या बात चल रही है, एपीआई की क्या बात चल रही है, इंटीग्रेशन सीक्रेट की क्या है, एक्सेस कोड क्या है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू हैव टू डू द सम रिसर्च फ्रॉम योर एंड आल्सो, यू कंपेयर देयर फीचर्स, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर एंड यू हैव टू गो इट। But right now we have a power school जिसका इंटीग्रेशन है, इसलिए we have to recommend it. Even our admin console also recommended that a power school, उसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं अभी, तो you have to go with the power school. But you are not compulsion with the power school, you have with the other integration tool also. There are multiple one. But before that we have to use to check the first requirement कि हमारी requirement क्या है। Because अगर हम requirement पहले अपना गैदर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट टूल को यूज करें तो वो हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू गो विद द एनीवन एल्स। सो आई थिंक जो सर थे उनका मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। जी कमलेश सर पूछ रहे हैं कि देयर स्कूल हैज 15 टीचिंग एंड लर्निंग लाइसेंसेस, तो अगर वो बैकएंड से ये मार्किंग स्कीम सेटअप करते हैं तो ये बाकी सारे या सिर्फ उन 15 अकाउंट्स में सेटअप होगा या बाकी अकाउंट्स में फिर सेटअप हो जाएगा? इट्स ओनली फॉर दोस 15 अकाउंट्स, so only for the those 15 अकाउंट्स। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको मैं चेक भी कराऊंगा कि विद योर परमिशन इफ आई जस्ट लॉग इन वन अकाउंट्स, गिव मी अ सेकंड। सो उस पे मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है वो एक्चुअली। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वी हैव टू लव टू एड्रेस। साथ में मैं लॉगिन भी कर रहा हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। इन फैक्ट रेनू मैम, देयर आर 2 क्वेश्चंस। इन फैक्ट आपका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज लाइसेंसेस, इफ यू अलाउ मी आई विल टेक दिस अप एट द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट द सेशन, कि हम यही बात कर रहे हैं कि लाइसेंसेस के बेनिफिट्स क्या हैं। सो आई विल टेक दैट अप एट द एंड ऑफ द सेशन कि exactly, you know, kind of picking up all those things. And also Abhishek, Renu ma'am has just asked which setting will help an admin to allow students with their personal Gmail IDs to join a Google Classroom created in the school domain. Okay, so ये काफी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो हमने लास्ट में एक OU सेटिंग्स के लिए रखा हुआ है। आई थिंक उसमें जो डे टू डे हिचकप्स जो आते हैं आपको, चाहे एडमिन्स पे हो, स्कूल टीचर्स, किसी भी लेवल पे हो, आई थिंक उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। Absolutely. एंड जो रियल टाइम ऑफ
challenges आते हैं उनको भी cover करूंगा and हर तरह के problem questions को करूंगा कि how to make it easy. So Absolutely. can you just allow me to share my Yes, screen? please go ahead. Please go ahead. You can just click on, override that. Also, Vrushali ma'am, grading scheme is not available for fundamentals account. Abhishek has already answered that. Renu ma'am, in the classroom, the teacher would set default settings. Basically, if as the admin, I set these settings ki term 1 goes from April 1 to 30 September. Term 2 goes from so on to so on. राइट वो सेम चीज क्लासरूम में टीचर को रिफ्लेक्ट होने लग जाती है सो टीचर कैन डिसाइड ओके आई एम सेंडिंग आउट अ पीबीएल बट इट इज meant for second term. So what is set from the back end, the admin decides कि quarter wise करना है, term wise करना है, half yearly wise करना है, whatever it is, it gets reflected on the teacher's end as well. So sir आपका query था कि जो लाइसेंस हैं उन्हीं उतने पे अवेलेबल होंगे या सबके लिए? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई एम अ यूजर वन एडमिन कंसोल, दोस हैव अ यूजर स्टैंडर्ड लाइसेंस. तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है. सर्विस स्टेटस है, सेटिंग्स है, क्लास सेटिंग्स है, डेटा एक्सेस है, रोस्टर इंपोर्ट है एंड SIS है एंड अदर थिंग्स है. इवन मैं इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखा है बट आई एम नॉट गोइंग टू एबल टू यूज द SIS इंटीग्रेशन बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप पे जाऊंगा, वो इंटीग्रेशन को होगा बट आई एम नॉट एबल टू यूज बिकॉज इट्स क्लियरली मेंशन इट्स विद द एजुकेशन प्लस और टीचिंग लर्निंग. एंड जो ग्रेडिंग और मार्किंग स्केल्स वाला पार्ट था वो भी मेरे पास नहीं आ रहा है बिकॉज आई हैव नॉट एनी लाइसेंस. सो होप कि ये स्क्रीन शेयर करने के बाद सर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि क्या डिफरेंस है कि जो विभा जो शो कर रही थी स्क्रीन और जिस पे लाइसेंस नहीं है क्या है. तो यूर पे जस्ट गॉट इट कि प्रॉब्लम है. या थैंक यू सर, दैट्स यू टू गॉट इट. ग्रेट, ओके. आई थिंक वी कैन मूव ऑन. ये एक आध क्वेश्चंस हैं वो हमने एनीवे मतलब एंड के लिए we'll definitely address those. Okay, Abhishek, let's get started with the next part. I'm so sorry. Give me 1 second. मैंने गलत स्लाइड दिखा दी है. Give me 1 second, please. Yeah, sure. Yeah, go ahead. So now what are the different tools that are available with us to help them to do the more things? तो वन एक चीज होता है एनालिसिस. एक जितनी भी मीटिंग्स होती हैं टीचर्स, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज करेक्ट मी, कि पूछा जाता है कि आपके बच्चे कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं. एक टीचर्स को भी होता है क्योंकि ऑल आर वी आर गोइंग थ्रू द मार्क्स रिजल्ट कि मेरे क्लास का 100% रिजल्ट है, मेरा बच्चा ये कर रहा है. बट 100% में भी जो मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल रेशियो जो आज के टाइम पे 30 या 25 का रेशियो है, उसमें कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है, हाउ वी हैव टू चेक. वी हैव मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल थिंग्स. मैं हर एक बच्चे का हर एक चीज को लेके वो चेक नहीं कर पाता. और कहते हैं कि आज में जो सबसे ज्यादा कॉस्टली दैट्स द डेटा. डेटा इज द एक्चुअल थिंग दैट्स वी आर वर्किंग. ठीक है. तो जो भी स्टूडेंट आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप क्लासरूम बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है. बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, दैट इज सेव अगेन एंड अगेन. So there is another one more feature that called the classroom analytics. So ये आपको स्कूल को आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको डेप्थ एनालिसिस देंगे कि कौन सी क्लास कैसा कर रही है, कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, कहाँ पे बच्चे असेसमेंट अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे हैं, क्या क्लासेस है, क्या कोर्सेज हैं, क्या है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू विभा टू जस्ट play this kind of a view, तो they have to understand क्या है. After that we have to go to the admin console कि वहाँ पे कैसे दिखेगा. और also request कि जहाँ पे education plus नहीं है लाइसेंस, यहाँ पे already mention है कि you need education plus, कि without license and with license में क्या difference आ रहा है, क्या benefit है. तो एक query था, तो वहाँ से थोड़ा सा 5% आपको आंसर मिलेगा query का. इंटरेस्ट ऑफ क्या रहेगा कि एनालिटिक्स में क्या आ रहा है, कि कितना परसेंट असाइनमेंट आपका सबमिट हो रहा है, कौन सा बच्चा कर रहा है, क्या ग्रेडिंग आ रहा है. तो वो चीज रहेगा. तो रिक्वेस्ट टू विभा टू हैव टू जस्ट गो बैक टू द एडमिन कंसोल. फर्स्ट यू हैव टू शो दैट हैव नो विदाउट लाइसेंस वाला पार्ट. Sure. I'll do that. So yeah.
ताकि उन्हें डिफरेंस पता चले कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने एक अभी डिफरेंस बताया कि सर ने कहा था कि लाइसेंस नहीं है तो वो क्या फीचर्स दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो ऐसे तब इनको कंपैरिजन होगा तो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द बेनिफिट। या प्लीज गो। परफेक्ट, ओके। सो जैसे अभिषेक ने कहा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक लाइक 2-3 मिनट्स और मैं आपको ये फीचर दिखाने वाली हूँ। अगर यहाँ पर कुछ आईटी एडमिन्स हैं, वी अंडरस्टैंड प्रोबेबली आप लोग ये एक्चुअल में करने नहीं वाले, यू आर नॉट द टीचर इन द क्लासरूम, however आपको समझ में आना चाहिए कि what is the benefit of doing that from the back end, right? So what you see, in fact I'll just share my screen, there you go. What you see here is a Google Classroom that has been made on a fundamentals license. तो यहाँ पर कोई भी मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर नॉर्मल क्लासरूम, ये सारे हम आई एम श्योर यहाँ पर हम सब क्लासरूम यूजर्स हैं, इतना हम लोग ने सबने देखा है। I'll take you to a classroom which has the premium features, right? So what you see right here, these two are super duper powerful tools, right? ये है visit a class and school analytics. School analytics, classroom analytics, same, pretty much the same thing. Right here, if I click on visit a class, this is meant for, समझ लीजिए मैं हूँ स्कूल की प्रिंसिपल और मैं जानना चाहती हूँ कि क्लास 7A की हिंदी टीचर ने क्या क्या असाइनमेंट्स दिए हैं, क्या मटेरियल दिया है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लीडर्स, स्पेशली अगर कोऑर्डिनेटर्स, हेडमिस्ट्रेसेस, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, बहुत बार होता है पीटीएम में पेरेंट्स पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के पास, नहीं हमारा बच्चा 8th B में पढ़ता है और उनकी सोशल साइंस के टीचर ने तो कुछ काम ही नहीं दिया, राइट? So the principal can't really sit and call up all social science teachers and Hindi teachers and maths teachers at that moment and ask them about it, right? This one right here is a way of the coordinators, the head of departments, the principals to keep a check on what is happening in the school. So if you see right here, I have the admin console access. So what I'm, ये मेरी टीम महातत्व टीम का डोमेन है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, बट वी डू हैव स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं है, वी डू हैव स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन एज टीचर्स. वन थिंग आई कैन डू इज लेट्स से माय कॉलीग्स नेम इज पूजा. आई वांट टू फाइंड आउट कि पूजा ने जितने क्लासरूम्स क्रिएट किए हुए हैं उसमें क्या चल रहा है. मैंने पूजा के नाम से ढूंढा और मैं जानना चाहती हूँ, अच्छा ये जो क्लासेस हैं इनमें पूजा इज अ टीचर, ये सब क्लासेस में पूजा इज अ टीचर. एंड आई वांट टू फाइंड आउट, अच्छा इस क्लास में क्या चल रहा है, इस क्लास में आई वांट टू सी कि इस क्लास में एनालिटिक्स कैसे चल रहे हैं, इस क्लास में मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूजा ने क्या क्या मटेरियल सेंड किया है, क्या नहीं सेंड किया. द पेरेंट हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी सेइंग कि हिंदी टीचर ने तो कुछ भी सेंड नहीं किया है, तो मैं फटाफट यहाँ पर जाके विजिट क्लास कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि हिंदी टीचर ने क्या क्या सेंड किया है. लेकिन मुझे क्लास वर्क में जाके तो क्लियरली दिख रहा है सब कुछ सेंड किया हुआ है टीचर ने, राइट. सिमिलरली मुझे पेरेंट इज सेइंग कि यू नो द चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग टू वेल. आई क्विकली कैन गो हेड चेक द एनालिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासरूम कि अच्छा उस क्लासरूम में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन क्विकली हैव अ लुक एट, ओके इस क्लास में ये चल रहा है. In fact, right here I'm going to zoom in a bit. I can check last 30 days में क्या हुआ है, last पूरे पिछले साल में क्या हुआ है. I can find out कि अच्छा in the last 365 days what has happened in this particular classroom. कौन लोग आए हैं, क्या assignments हुए हैं, नहीं हुए हैं, किसने किसके missing assignments हैं. If you see name wise it's written, proper tabular form में मुझे given है कि किसने कितनी असाइनमेंट्स करी हैं. अगेन राइट हियर आई कैन जस्ट टर्न अराउंड माय लैपटॉप एंड शो टू द पेरेंट कि हिंदी टीचर ने तो सब कुछ भेजा हुआ है, बट यू नो योर चाइल्ड इज नॉट अटेम्प्टिंग दीज थिंग्स, राइट. So that's one thing for as I said, for a principal, for a vice principal, for an HOD to have a good look at any classroom that they might want, right. And visit a class, हम अगर मैं क्लासेस ढूंढती हूँ तो मैं क्लासेस किसी टीचर के नाम से भी ढूंढ सकती हूँ, ये देखिएगा, किसी टीचर के नाम से ढूंढ सकती हूँ, किसी स्टूडेंट के नाम से ढूंढ सकती हूँ, किसी ईमेल एड्रेस से ढूंढ सकती हूँ कि अच्छा मुझे जानना है लेट्स से आर्यन सिंह एक बच्चा है, वो कौन कौन सी क्लासेस में जुड़ा हुआ है उसके बारे में मुझे जानना है इन पर्टिकुलर. मैं सिर्फ बच्चे का नाम ढूंढ के आई कैन फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट इट. सो दैट्स वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ विजिट अ क्लास. एंड स्कूल एनालिटिक्स आपने अभी यू जस्ट हैड अ लुक एट इट. आई विल क्विकली शो यू वंस अगेन. स्कूल एनालिटिक्स इज मेंट फॉर, as you already saw, क्या चल रहा है, right?
किसने कितने सबमिशन किए हैं, मुझे सारे क्लासरूम्स देखने एक ही बार में, मुझे पिछले 30 दिन का देखना है, पिछले पूरे साल का देखना है, whatever I want to know proper in a tabular form, in a graphical form, I can see okay 14% ही assignment completion है, मेरे स्कूल में बच्चे assignments नहीं दे रहे हैं, average marks that my kids are getting is this much, this is the percentage of active students in my class, so on and so forth, right? So all these things I can very well check as the admin of my domain, right? So that's how it helps. And I'll just give it back over to Abhishek to tell us about how can admin roles be defined and how can we actually turn this setting on at the back end. थैंक यू विवा. सो एक ये काफी अच्छा है. तो इवन फॉर अ सिंगल क्लिक we get a complete information about a student or a teacher का परफॉर्मेंस कैसा है. काफी बार कुछ बच्चे भी शैतान होते हैं जो नहीं कहते हैं जैसे कि काफी बार हमने भी कहा है कि आज तो हमें कोई होमवर्क नहीं मिला क्योंकि हमें खेलना होता था. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू दैट कि उस टाइम पे इतना नहीं होता था कि पेरेंट्स और टीचर का इतना एंगेजमेंट नहीं होता था. दे हैव टू रिलाई ओवर द स्कूल एंड द टीचर्स. बट आज के टाइम पे काफी चीजें होता है कि हाँ कि सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन कि क्या अच्छा है कि व्हाट होता. हम अप टू डेट अब मार्केट है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, वी आर फॉलो एंड ऑल. सो इसके लिए वी नीड अ वन रोल जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं. तो रोल है तो इट्स नॉट अ एडमिन रोल, इट्स अ सेपरेट कस्टम रोल बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट अलग है. तो एक हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, हम बना बनाया कुछ लेके नहीं आ रहे हैं कि 2 मिनट्स मैगी नूडल नहीं है लेके आया बनाया कर लिया. फॉर दैट वी हैव टू कस्टमाइज, वी टेक आवर थिंग्स एंड जस्ट मेक अ नूडल्स एंड आफ्टर दैट डू इट. तो उसके लिए वी हैव टू गो द लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन रहता है अकाउंट नाम का. तो जो भी एडमिन लॉग इन करेगा तो लेफ्ट हैंड पे अकाउंट होगा, तो देयर इज अ एडमिन रोल. सो क्लिक ऑन द एडमिन रोल. तो यहाँ पे दे आर द 2 ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन कीजिए. तो एक रोल्स है, एक है क्रिएट न्यू रोल्स. रोल्स वो है रोल यहाँ पे जो शो हो रहा है. जस्ट यू हैव टू गो बैक लिटिल बिट, या गो बैक जस्ट. सो यहाँ पे रोल्स हैं. तो अभी तक तो हम एडमिन की बात कर रहे थे, ये सुपर एडमिन कहाँ से आ गया. तो वो भी वी हैव टू एंड फॉर द सेशन हमने रखा है. तो यहाँ पे रोल्स वो रोल्स आ रहे हैं सारे जो ऑलरेडी रोल्स है. तो यहाँ पे आप देखिए रोल है, क्या रोल है, रोल का डिस्क्रिप्शन है, देन क्या टाइप का रोल है, यानी सिस्टम रोल. सिस्टम रोल का मतलब है ये ऑलरेडी बना हुआ है. तो अब मैंने बात की थी कस्टम रोल, तो कहाँ से बना है. तो देयर इज अ ऑप्शन फॉर आप देखेंगे तो मोस्टली आर द सिस्टम रोल्स. कुछ नए नए रोल्स वो गूगल इंट्रोड्यूस करते रहता है, कुछ बीटा वर्जन में भी इन्होंने शो किया हुआ है. रीडर एडिटर्स क्यों है, तो पहले ग्रुप्स में वो पार्ट रहता था. तो अब आता है कस्टम रोल. हम कस्टम रोल की बात कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे कस्टमाइजेशन रोल्स. सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू रोल. तो अगर हम जहाँ पे भी कस्टम रोल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक नया हमें रोल बनाना होगा. तो उसमें 3 फील्ड्स रहेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो पहला स्टेप रहता है रोल का इंफॉर्मेशन. फर्स्ट पार्ट है रोल इंफॉर्मेशन. तो उसमें एक रोल इन्फो था कि रोल का नाम क्या है, इंग्लिश एक्चुअली. उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि सीनियर लेवल कहाँ पे, वो इंग्लिश. तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू. दोनों फील्ड्स मैंडेटरी है. नाउ एडमिन कंसोल प्रिविलेजेस. तो यहाँ पे ऑलरेडी है कि इस इंग्लिश टीचर को आपको क्लासरूम का तो फीचर देना था. तो वी हैव टू गो फॉर द क्लासरूम ऑप्शन. यू हैव टू गो डाउन. down. Yeah, you have to go first. Yeah, this is a classroom. So इस क्लासरूम में हम बात करते हैं क्लासरूम की. जो भी चीज आ रहा था विजिट क्लासरूम, वो भी विजिट था क्लासरूम से. एनालिटिक्स. तो यहाँ पे हम कस्टम रोल क्रिएट कर रहे हैं. किस क्या पर्पस था क्लासरूम के लिए, क्या करना था, विजिट एनालिटिक्स. तो इसमें हम व्यू एनालिटिक्स डेटा फॉर यूजर्स एंड क्लासेस करेंगे, ये करेंगे. अगर आपको क्लास को भी मैनेज करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट अ मैनेज क्लास आल्सो. अगर आपको नहीं करना है यू हैव टू अनचेक. तो
एक ही आपने रोल दे दिया, कस्टम रोल बना दिया, तो एक है। तो इसके अलावा आप कितने भी कस्टमाइज रोल बना सकते हैं एज अ एडमिन के तौर पे भी, अदर्स के तौर पे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन एंड जस्ट फॉर द, तो यहाँ पे आ गया एडमिन कंसोल पब्लिश सर्विस है, क्लासरूम, मैनेज क्लासरूम। तो हम 2 सर्विसेज उसको दे रहे हैं, यानी 2 फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप क्लासरूम के साथ आपके पास एड ऑन ये हो गया कि एक तो मैं एचओडी हूँ एज अ नॉर्मल यूजर, उसके अलावा आपको एक और रोल दे दिया है कि आपका ये रोल भी है एज अ सिस्टम, कि आप ये फीचर्स को देख सके। व्हेन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट रोल, आपका रोल क्रिएट हुआ है। लेकिन होता है ना कि आपने कोई नया रोल बना दिया, एचओडी इंग्लिश बना दिया, लेकिन असाइन नहीं किया। तो यहाँ पे फिर आपको टीचर देखना पड़ेगा कि किसे असाइन करने हैं एचओडी टीचर के लिए। इंग्लिश टीचर मेरे पास काफी है, हु इज एचओडी। तो यहाँ पे असाइन मेंबर्स का एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप उस पर्सन का नाम सर्च कीजिए, यू हैव टू जस्ट नेम और ईमेल आईडी, और उसको फिर आप असाइन कर सकते हैं कि इस रोल को कितनों को देना है, ये वाला रोल वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, तो अभी देखिए एक सेकेंड, रोल असाइनमेंट स्टेटस में इनका कुछ भी नहीं आ रहा है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो वंस यू हैव टू क्लिक ऑन द असाइन रोल, आपका 4th कॉलम है, तो रोल असाइनमेंट स्टेटस अभी नहीं है, आप जस्ट क्लिक ऑन द असाइन रोल। तो असाइन रोल के बाद तो जो ये टीचर है, तो आपके पास एक यूजर भी यहाँ पे आ गया कि पहले कोई यूजर नहीं था, यहाँ पे आ गया। आपको जितने यूजर्स को देना है आप उतने यूजर्स को दे सकते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द अगेन द यूजर, तो उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि अब उनको दिखा जाएगा उन पे क्या असाइन रोल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द पुश अप कॉल वंस मोर टाइम। तो यहाँ पे आपका हो गया, आपको आपके फिर कोई टीचर है आ गया चला गया, अगर आपको उसको हटाना है वो रोल, तो देयर इज अगेन द अनअसाइन द रोल। आप अनअसाइन रोल कीजिए, आप अनअसाइन रोल पे आप क्लिक कीजिए, तो उनके पास से ये रोल हट जाएगा। तो यू हैव टू अनअसाइन द रोल। तो एक रोल को असाइन करना, अनअसाइन करना इज जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। तो ये हो गया आपको कस्टमाइज। तो जैसे ही आप रोल देंगे जिस टीचर को, तो उन पे व्यू क्लासरूम और एनालिटिक्स वाला फीचर्स ऑन हो जाएगा। तो कहाँ से होगा ये अभी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा है। तो दिस इज द थिंग, तो वी हैव टू जस्ट बैक टू द स्लाइड्स। Yes, Abhishek, I just have one question here. I'm pretty sure others are also wondering the same. अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम as you said सुपर एडमिन या मेजर एडमिन राइट्स दे देना सबको कोई समझदारी नहीं है, राइट? तो अगर मैं चाहती हूँ as let's say I'm the school owner, I want that I have one IT person who is the super admin who looks after everything. Then I want my principal, my vice principal and my 5 HODs to have this, right? तो हम अगर एक रोल बनाते और उस कस्टम रोल का नाम लिख देते, लेट्स से क्लासरूम विजिट्स या फिर इस तरीके का एक नाम लिख दिया, और उसमें वो 5-6 लोगों को सेम रोल असाइन कर दिया, दैट्स वेरी मच पॉसिबल कि मैं 5-6 लोग चाहती हूँ कि वही 5-6 लोग सिर्फ क्लासरूम देख सके। हाँ, इट्स प्रीटी मच पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असाइन मेंबर्स करने हैं, जितने आपको मेंबर्स को असाइन करना है आप वो कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ। तो आप चाहें तो आप करके अभी भी दिखा सकते हैं कि आपको 2 यूजर्स, 3 यूजर्स, 4 यूजर्स जो भी है। तो यू हैव टू जस्ट क्लिक 1 बाय 1 और यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे वो टॉप पे एक सर्च फॉर यूजर ग्रुप एंड सेटिंग्स है, वहां पे जाके उस यूजर को आप सर्च कीजिए और वहां से भी आप उस यूजर्स को कर सकते हैं। ग्रेट, ओके, थैंक यू। Okay, we just stopping here. I don't see any new questions. अगर किसी के पास कुछ questions हैं तो please बताइएगा, because there are 2 questions we know that are pending. वो हम end of the session we are going to address those. Any other thing? Anyone wondering any other thing? Because I can see some good comments about. Thank you, Harmeet ma'am. You know, it's a good feature and yes, definitely a good feature, क्योंकि कोई समझदारी नहीं है कि हम सभी को हर तरीके का एडमिन रोल दे दें, but at the same time, you know, one teacher or one coordinator who's managing a certain group of teachers, it is important for them to have access to what are the other teachers doing. So that is definitely a very helpful feature. Okay, great. I think we should move on. Abhishek, let's move on. I don't see any other questions. Sure. No worries. Yeah.
Now, next one more agenda is install the third party add-ons. So पहला क्वेश्चन आता है कि हमें एड-ऑन्स की जरूरत क्या है, पहला क्वेश्चन। और फिर इसमें भी लिखा है कि हमने थर्ड पार्टी क्यों लिखा हुआ है। बोथ द क्वेश्चंस कि अभी तक तो हमारा सब सही चल रहा था, अब थर्ड पार्टी एड-ऑन्स की क्या जरूरत है। तो एड-ऑन मींस कि टू प्रोवाइड समथिंग एडिशनल, ठीक है। तो सिंपल से पहले हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड होते थे, डस्ट वाली चौक्स होती थी, उसके बाद ग्रीन बोर्ड्स आए, डस्टलेस चौक आ गई, उसके बाद हमारे स्मार्ट क्लासरूम आ गए, प्रोजेक्ट होता था, अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो दैट इम्प्रूव योर द थिंग्स। तो सेम थिंग्स की कुछ चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी, बट दैट नॉट फुलफिल अवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसिंग है तो वो एड ऑन के थ्रू होगा कि अच्छा ये एड ऑन होता है तो अच्छा था। लाइक अ पिज्जा, सिंपल पिज्जा आता है, हमें ऑरिगेनो भी चाहिए होता है, चिली फ्लेक्स भी चाहिए होता है, तो जस्ट मेक अ थिंग्स बेटर। सो सेम फॉर द क्लासरूम्स एंड ऑल। क्लासरूम पे उन्होंने एक जेनेरिक फीचर आपको दे दिया कि आप यूज कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट की क्या चाहिए फॉर द मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर कह रहे हैं कि मुझे अपना क्रिएटिविटी करना है, तो क्यों ना मैं जियोजेब्रा का यूज करूं। दिस इज वन ऑफ थिंग्स। सो दैट्स वी रिक्वायर्ड द एड-ऑन्स, एंड सारी चीजें एक कंपनी नहीं बना दे, तो दैट्स रिक्वायर्ड वी हैव टू ऐड फॉर द डिफरेंट एड-ऑन्स। एड-ऑन्स के क्या एडवांटेजेस है, क्यों है, तो इट्स अ स्मॉल वीडियो दैट वी हैव टू प्ले, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर द एडमिन कंसोल कि एडमिन कंसोल में जाके वो कैसे प्ले करेंगे। तो प्लीज विवन। Google Classroom Add-ons is a new feature that allows you to bring your favorite content, activities, and lessons from top EdTech tools right inside Classroom. Once your admin sets up an add-on, you, the teacher, can find it and get logged in with just a few clicks. Add-ons use a single sign-on from Google, so you and your students can sign into Classroom and your add-ons with the same secure login, removing the need to remember multiple passwords. And no more navigating to different websites to access classwork, everything stays right within Classroom. To access content from your add-ons, open a new assignment in Classroom and select the add-on you want to use. Add-ons are custom built, so depending on the tool you're using, you'll be able to do things like browse, search, filter, and preview the content you want to use, then assign it to your students. Students are directed to complete the assignment, all without leaving Classroom. Some add-ons automatically grade assignments and upload grades to Classroom, saving you time, as well as providing detailed visibility into student performance. Learn, organize, collaborate, create with Classroom. Yeah, thank you, Vivek. So just give a small introduction about the add-ons, benefits in the classroom. So how we have to add those different add-ons in our classrooms, and how we have to just, so we have to just go in the, move to the next slide. So we have to check it कि कैसे कैसे क्या क्या add-ons हैं क्या. Google Classroom. So there are mentions 3 ways to let user access add-ons. So who is the users? Our teachers are the users and students are the users. Those require those kind of add-ons. So यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन चाहिए, वन है एडमिन इंस्टॉल, अलाउ लेस या कॉन्फ़िगर API कंट्रोल्स. So for the admin install, it's easy to install कि हम admin console पे गए करके कर दिया. So we have to go on the dashboard. Then is the allow list. Just go back to the slide, please. So second option is the allow list. कि allow list का मतलब क्या है? कि why is the allow list? अगर admin install कर रहे हैं तो allow list का क्या मतलब हो गया? Both are the difference. So है different कि क्यों है different? वो मैं आपको बताऊंगा. Third is the configure API controls. Configure APIs
होती हैं तो जस्ट नीड अ मोर टेक्निकल स्किल्स टू राइट अ कोर्स एंड ऑल. सो जहाँ पे हमारे जितने भी आईटी एनालिस्ट हैं जो अच्छी कोडिंग्स हैं वो थर्ड फीचर को यूज कर सकते हैं. एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि दे आर यूजिंग दोज फीचर्स. नॉर्मली होता नहीं है. तो जो हमारा मेन फोकस होगा फर्स्ट 2 पार्ट्स पे रहेगा कि एडमिन इंस्टॉल कैसे होता है एंड अलाउ लिस्ट कैसे होता है. तो फॉर दैट हमें अगेन अपना एडमिन पैनल पे जाना होगा. तो वी हैव टू गो बैक टू द एडमिन पैनल, एडमिन कंसोल जिसे हम लोग कहते हैं. उसमें हमारा एक एप्स नाम का ऑप्शन होगा ऑन द लेफ्ट पैनल, एप्स. या क्लिक ऑन. सो यहाँ पे हमारे 3 तरह के एप्स हैं. एक है गूगल वर्क स्पेस, यानी गूगल वर्क स्पेस के डिफरेंट, एंड उसके साथ कुछ आपके एडिशनल गूगल सर्विसेज, दैट्स अगेन द एप्स. एंड वन इज अ वेब एंड मोबाइल एप्स, दैट इज नॉट. Fourth one is a Google Market Space, Workspace Marketplace apps. So जो आपके add-ons, जो additional add-on हो रहा है वो सारा हो रहा है. And this one is a app list, then settings. तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, app list and settings. अगर कुछ करना है इंस्टॉल, एड-ऑन को कुछ इन्वोक करना है तो एडमिन डायरेक्ट जा सकता है, उस फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकता है. तो विभा, कैन यू जस्ट गो फॉर द फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो गूगल वर्कस्पेस और एडिशनल गूगल सर्विसेज हैं उसमें से किसी को भी. या you have to just click on. I'm sorry, Google Workspace वाले, Yeah. पहले वाले. हाँ. तो जैसा सिंपल वे कि जैसे आपको कोई है तो फॉर एग्जांपल आपका जैसे ऐप क्लासरूम है या आपका ऐप शीट है, तो ऐप शीट को सबको इंस्टॉल करना है तो वो डायरेक्ट यहाँ से इनिशियली कुछ नहीं करना होगा. जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑन फॉर एवरीवन करके तो वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेगा. नाउ आता है एड-ऑन्स को ऐड करना है. जितने भी आपके एड-ऑन्स ऐड होते हैं वो आपके मार्केट प्लेस पे होते हैं. मार्केट प्लेस इज अ सिंपल द प्लेस जहां पे हमें सब कुछ मिल जाएगा. अब यहाँ पे है कि हम यहाँ से ही क्यों ले रहे हैं. तो देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड. वन इज अ सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज है कि एक नाम के आज के टाइम पे काफी ऐप्स आते हैं. आप एक चीज सर्च कीजिए, आपके पास 4 सिर्फ 6 ऐप आ जाएंगे. तो ऑथेंटिसिटी इज द वन मेन थिंग. अगर आप यहाँ से ले रहे हैं गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस से, फर्स्ट इज होगा आपका सेफ ऐप होगा, सारे सिक्योरिटी मेजर्स होगा. सेकंड, वो रेलेवेंट होगा. ऐसा नहीं है कि आपने सर्च किया कुछ और आपको कुछ भी दे रहा है वो. तो यहाँ पे आपका रेलेवेंट आएगा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो दीज आर द 2 बेनिफिट्स, क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी इज मोर थिंग कि आपने कोई ऐप किया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि ऑन द डेली न्यूज कि उसने वो ऐप इंस्टॉल किया, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया, ये फ्रॉड हो गया. वी हैव नॉट अ ऑथेंटिसिटी. तो ऑलवेज सेट कि आप हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर्स या ऑथराइज प्लेस से ही अपने लिए, आप डायरेक्ट एपीके को इंस्टॉल मत कीजिए, कोई अननोन सोर्स से इंस्टॉल मत कीजिए. दिस ओनली कॉज फॉर योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐप सर्च करना है एंड ऐप सर्च करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल. तो डोमेन इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं यहाँ पे. ऑन द टॉप रो इंस्टॉल्ड ऐप है, देन अलाउ लिस्ट ऐप्स है एंड यूजर इंस्टॉल सेटिंग्स है. तो इसमें क्या है कि अलाउ लिस्ट क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं ना कि यूजर्स की अलाउ लिस्ट. तो इसका बेनिफिट क्या है. तो सर बेनिफिट ये है कि एज ए स्कूल या आईटी एडमिन को लगता है कि ये ऐप नेसेसरी है, हमने इंस्टॉल कर लिया. वरना बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स वाज लाइक दैट. इवन जब मैं था तो हमें भी खेलने के लिए होता था कि ठीक है क्या कर रहे हो कि हाँ मम्मा पढ़ रहे हो, बट वी हैव टू जस्ट मेक अ वन ग्रुप एंड स्टार्ट टू डू द थिंग्स. तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज से तो यहाँ पे कुछ ऐप्स को जो अलाउ करेगा स्कूल या आईटी एडमिन, वो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी. इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है कि क्या है कि अगर हम स्कूल लेवल पे करें कि एडमिन इंस्टॉल, एडमिन ने एक ऐप ऐसा इंस्टॉल कर दिया जो साइंस के लिए तो यूजफुल है बट इंग्लिश के लिए यूजफुल नहीं है. तो वहां पे भी एक चैलेंज आता है कि मेरे पास 6-7 ऐप्स आ गए, मैं उन ऐप्स का क्या करूंगा. कि देयर इज अ ऐप लॉन्चर ऑन द राइट टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर जहाँ पे वी लिखा है, तो जैसा ऐप लॉन्चर 9 डॉट्स. सो इससे ऐप लॉन्चर, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऐप्स आ रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो वी हैव स्कूल डिफरेंट काइंड ऑफ. सो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है. यूट्यूब है, अर्थ है, ये. तो इसका मुझे जरूरत नहीं है आधे से ज्यादा चीजों का. फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट का पर्सन हूँ या कुछ और पर्सन है, मुझे स्लाइड्स नहीं बनानी, मुझे तो एक्सेल से शीट से काम है. व्हाई हैव टू जस्ट क्रिएट अ स्लाइड्स.
मुझे क्लासरूम का क्या मतलब, मैं तो अकाउंट का पर्सन हूँ, मुझे अकाउंट से लेते थे। तो यहाँ पे फिर हमें सर्च करना पड़ता है, स्क्रॉल करना होता है कि देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स। तो एडमिन इंस्टॉल कर देता है, उसे नहीं पता कि किसको क्या जरूरत है। तो यहाँ पे फिर एक सेकंड ऑप्शन आता है अलाउ लिस्ट। अलाउ लिस्ट का फीचर क्या है, एक बेस्ट फीचर ये होता है कि आईटी टीम ने प्रिंसिपल, एचओडीज, डायरेक्टर्स जिसके साथ हम मिलकर एक बात किया, सारे एचओडीज ने कहा कि हमें ये एप्स चाहिए होते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। उसने एक पूरा लिस्ट लिया, उसने लिस्ट को सर्च किया आईटी पर्सन ने, वहां पे अलाउ लिस्ट में डाल दिया। नाउ हैव टू टीचर टू रिस्ट्रिक्ट कि उन्हें कौन कौन सा यूज करना है, बिकॉज 5th क्लास तक का कुछ प्रॉब्लम है एंड दैट्स ऑल दोस थिंग्स, तो वी हैव टू डू द थिंग्स। तो वो चीज हमारा पार्ट रहता है। तो यहाँ पे अलाउ लिस्ट का दैट्स अ बेस्ट फीचर कि उसमें से बकेट में से सिलेक्ट करें, हैव टू डू द सर्च एंड जस्ट डू द थिंग्स। तो दिस इज अ अलाउ लिस्ट से ऐप इंस्टॉल कर लेंगे एंड इट्स अ बेनिफिट ऑफ द टीचर्स आल्सो। तो ये यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल भी आप कर सकते हैं एड ऑन थर्ड पार्टी का गूगल मार्केट प्लेस से एंड जस्ट डू द बेटर थिंग्स। तो दिस इज अबाउट द गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस की कैसे एड ऑन फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वी हैव टू जस्ट बैक टू द स्लाइड्स। Okay, any questions, anybody wondering what to do, how to do, कुछ भी, if there is any question for Abhishek, please हमें बता दीजिए। add-ons, just to be clear, क्योंकि even the people who are here जो fundamentals accounts वाले होंगे उनको पता होगा add-ons हमारे Google Docs के अंदर, slides के अंदर, forms के अंदर सब जगह add-ons का option होता है। वो सब fundamentals में भी होता है। When you upgrade to a license, you have add-ons within Google Classroom as well, just like you saw in the video. Classroom की भी efficiency को बढ़ाने के लिए हमारे पास add-ons का option होता है। So that's what we have focused on. Okay, I do not see any more questions. So we have just, as I think the second last part is pretty small, Abhishek, I think we should move on. Sure, definitely. So yeah, Vibha, that's your turn. Right, okay. So I'm not sure how many of you are aware about this. This is an app called Read Along, right? Just in case it's a completely new thing, just go to your Play Store and Read Along is a mobile app that's available for anybody and everybody, right? आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपको रीड अलोंग कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ हो, चाहे अपने खुद के बच्चों के साथ हो, you can very well make use of Read Along, right? And Read Along has now been integrated with Google Classroom, right? And how is that so? In fact, I'm just going to show you a super short video. As I said, it is a standalone mobile app as well. It is very, very well integrated within Google Classroom. Let me quickly play this for you and then let's talk. Bill soaks the To get reading help, tap the word checks. the shed Read this out loud. Shed. Bess is on aunt Not not there. there. Well done, you got that. Bess are Where? you? Where are you? Nice. Right. So as you saw, what is happening is, especially for our little ones, especially for our primary kids, हम लोग बहुत ज्यादा रीडिंग पे फोकस करते हैं, राइट? बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. So what Read Along does is it helps the child read, as it clearly says. बच्चे के लिए कोई स्टोरी, लेट्स से एक टीचर ने, आई एम द इंग्लिश टीचर ऑफ ग्रेड 2, मैंने एक स्टोरी आइडेंटिफाई करी और मैंने अपने 30, 45, 40 जो भी मेरे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, मैंने उन सबको वो स्टोरी भेज दी, राइट?
उसके बाद वो स्टोरी भेजने के बाद क्या होगा, सारे मेरे 30 बच्चे उसको रीड करेंगे अपने अपने पेस पर। हो सकता है कुछ बच्चे पूरा एकदम क्लियरली रीड कर जाएं, कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा सा अटके, कुछ बच्चे हो सकता है कुछ कहीं कहीं पर एक जगह फंसे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर वर्ड पर बहुत ज्यादा फंसे, राइट। तो एज द टीचर जब बच्चे अपना रीडिंग कर लेंगे, मुझे एक एनालिटिक्स मिलता है, मुझे एक प्रॉपरली देखने को मिलता है कि अच्छा ये जो स्टूडेंट ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्टूडेंट बी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, स्टूडेंट सी ने ये पर्टिकुलर वर्ड्स पे वो बहुत ज्यादा फंस रहा था, या फिर ये पर्टिकुलर वर्ड, सॉरी ये पर्टिकुलर सेंटेंस उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी. And this is an AI powered tool, and there is a chatbot called Disha. That's who's kind of helping the child out. कि अच्छा आप ये शब्द में अटक रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, रिपीट कीजिए, राइट. इनफैक्ट इफ यू यूज द मोबाइल एप्स, हमारे काफी सारे इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं. इट विल कम सून टू गूगल क्लासरूम एज वेल, बट हमारे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, ये सारी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं मोबाइल ऐप पर. गूगल क्लासरूम में भी जल्दी ही आने वाली हैं. बट एज आई सेड, इन गूगल क्लासरूम द टीचर इज गोइंग टू गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट, स्टूडेंट वाइज, वर्ड वाइज. मेरे को ये भी पता चल जाएगा ये 2-4 शब्द हैं जो मेरी पूरी क्लास के बच्चे इस शब्द से स्ट्रगल करते हैं. सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट. एंड इन फैक्ट मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और भेजा है इन द चैट बॉक्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर फीचर, गूगल क्लासरूम में रीड अलोंग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदा होता है, छोटा सा 3 मिनट का वीडियो है. प्लीज डू ट्राई दैट आउट, डू वॉच इट, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. So I am just quickly going to show you how to turn on read along from the back end, so that the ones who do have access are able to, the primary teachers can definitely make use of it. Abhishek, please. So you have to go to the admin console. Again, under apps. Yeah, under the apps, under the Google Workspace, or you have to directly search a read along on the top. That will also work. Okay. Yeah. And Right that here. you have to on for the everyone. So if you, अगर आप पूरे स्कूल के लिए करना चाह रहे हैं तो आप पूरे स्कूल के लिए भी ये अपना कर सकते हैं पूरा, ताकि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए यूजर्स हो जाएगा आपका. Absolutely. And just a little addition here, and specifically for the teachers who have joined us today. बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा, primary kids require a lot of reading practice. I'm sure there are a lot of times when you're let's say I'm teaching say 7th grade, लेकिन मेरे पास कुछ बच्चे हैं who have a few learning disabilities, who are struggling with the basics. तो I can differentiate within the Google Classroom, and I can make use of this feature in helping them with their language at 7th grade, 8th grade level as well. तो ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं है कि हमें छोटे बच्चों के साथ ही use करना है. If need be, we can very well make use of it for other grades as well. Okay, any questions before we move to the last topic and we take up 2-3 questions that are remaining? And next part, Abhishek is just going to talk about the importance of organizational units, the importance of having multiple admins in an organization. So just a bit about that, and of course take up those 2 questions that are there at the end. And also, just in case you're still wondering, so हमने आज जितनी भी चीजों के बारे में बात करी है, these are all features that come with the Edu Plus or the Teaching and Learning Upgrade licenses. ये सारे उसके benefits हैं, and of course again Abhishek is going to talk about the security features that come with it for a school. And if you're interested in knowing more, जो आपके benefits जो मिलते हैं इन licenses के साथ, जैसे मैंने पहले भी share किया था, आज का session is focused on the IT admins, the backend. We are going to have another session in the next week on Thursday. I've already shared the details in the chat box. That will be focused on teachers, कि teachers को क्या-क्या फायदा होता है उन licenses का. So please make sure you register for that session as well. And I do not see any question for this. Abhishek, I think we should move to our last part. So thank you, Abhiva. So अब there's कुछ questions भी आए थे, and for the last की admin consoles पे how to they make their life easy. So एक
बेसिक चीज होता है कि हाउ यू जस्ट मेक योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वेरी वेल। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या होता है कि जैसा टर्म आप देखेंगे, जैसा ये OU है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, तो जस्ट कंसिडर एज अ स्कूल इज अ मेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, दे हैव मल्टीपल क्लासेस। कैन यू जस्ट गो फॉर द एडमिन कंसोल, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहाँ पे सबसे बेटर पार्ट है कि जितना क्लीन आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होगा, उतना इजीली आप अपने सारे यूजर्स को मैनेज कर पाएंगे, उतने इजीली आप उनको राइट्स दे पाएंगे, सारी चीज कर पाएंगे। तो जितना जस्ट क्लिक ऑन द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज ऑप्शन, या फर्स्ट इज यूज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, go down this. Yeah, sorry, give me 1 second. Organization units. Yeah. So फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल है आपका है, तो उसमें अगर आप क्लासरूम वाइज बनाना चाहते हैं तो आपका क्या हियरार्की होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा कि आप प्राइमरी बनाइए, फिर आप 1st to 5th क्लास को रखिए, फिर क्लासेस वाइज आप फर्दर बाइफिकेशन कीजिए। तो एक बेनिफिट क्या होगा, जो भी आप असाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज कीजिए, ना कि कुछ भी फीचर्स आप पूरे स्कूल के लिए कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू चेक, जैसे कि ऐप पे हम लोग ने देखा था, जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, यानी ऐप्स का मतलब है डिफरेंट टूल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे जीमेल हो, शीट्स हो, स्लाइड्स हो, ड्राइव हो, तो हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं ऑन कर देते हैं, ऑन फॉर एवरीवन। ऑन फॉर एवरीवन का मतलब है ऑन फॉर द एंटायर स्कूल। तो ये चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, जितनी भी क्लासेस हैं अबव 8th क्लास, तो ट्राई टू डू कि आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन रखें, ताकि काफी सिक्योरिटी रहे। जो छोटे बच्चे हैं उनको हेल्प चाहिए होता है पेरेंट्स वगैरह का, तो एक उस पार्ट को भी ध्यान को रखते हुए उनके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कीजिए। तो जो आप कस्टमाइज सेटिंग्स हैं वो आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्लासरूम पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज अ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट आपके 2 सुपर एडमिन होना चाहिए। हम अभी तक एडमिन कंसोल की बात करते हैं, व्हाई वी हैव टू कंसीडर फॉर द सुपर एडमिन। सुपर एडमिन वो है कि जिस पे सारे राइट्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। व्हाई आई हैव टू सेट अप 2 सुपर एडमिन्स? गलती से एक सुपर एडमिन के पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिस आउट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हाउ टू रिकवर? तो सेकंड अगर हम पे बैकअप ऑप्शन रहेगा तो दिस अ बेनिफिट कि आप इसे इजीली रिकवर करेंगे। अदरवाइज देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो एंड थ्रू over the Google and takes a 1 month time also to recover the things। और 1 month एक टाइम पीरियड काफी हर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को, तो आपको उस पार्ट के लिए भी चीज को करना पड़ेगा। तो दिस इज अ सेकंड थिंग जो मैं कह रहा हूँ। प्लस आप कोई भी फीचर्स को ऐसे ही ऑन नहीं कीजिए। कोई भी फीचर्स को ऑन करने से पहले आप ये देखिए कि क्या है। कोई भी एप्स हैं तो आप टीचर्स से, IT पर्सन्स को मैं अगेन कहूंगा कि आपको जो भी एप्स करना है, टीचर्स को ना करके आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट लीजिए, आप उन्हें पुश कीजिए, ना कि आप डायरेक्टली उनको अलाउ करें। दिस इज अनदर टेक अवे। एंड काफी बार होता है कि सर मैंने ये फीचर ऑन कर दिया है बट उस पर्टिकुलर यूजर को या क्लास को नहीं दिख रहा है। तो रीजन क्या होता है कि आपके कुछ रूल्स ओवरराइड हो जाते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल सीनियर सेकेंडरी के लिए ऑन कर दिया है क्लासरूम, बट वो कहेंगे कि क्लास 11th के लिए मैं अपना रूल्स को नहीं देख पा रहा हूँ। तो दिस इज अगेन एक चैलेंज ये होता है कि आपको नहीं दिखता, तो टीचर्स काफी परेशान होते हैं। तो ऐसा काफी बार प्रॉब्लम आता है कि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आता है, आपको समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ है। मैं तो सारी चीजें सही की हैं, सारी सेटिंग्स सही की हैं, तो एक ही होता है। काफी बार अगर आपका विंडोज अपडेट नहीं होता है, वो चीज अपडेट नहीं होती है, तो आपको टाइम फ्रेम का भी चेक करना होगा। टाइम फ्रेम भी अगर आपका अलग है तो वो एक चैलेंज आता है। इसके अलावा कुछ फीचर्स मेंशन होता है इट्स रिफ्लेक्ट इमीडिएटली, बट समटाइम इट टेक्स अप टू द 48 आवर्स। एंड अगर आप गूगल का कोई भी फीचर यूज कर रहे हैं तो आई रिकमेंडेड पर्सनली कि आप क्रोम यूज कीजिए, अदरवाइज चैलेंज होगा। तो इनिशियली अभी क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मैं इसलिए नहीं सुन पा रहा था, आई यूज अ फायरफॉक्स, दैट्स वन ऑफ द ग्लिच। तो एक ये लाइव एग्जांपल हो गया कि आपको काफी बड़ा गैदरिंग है, तो काफी अजीब सी सिचुएशन होती है कि क्या है, मैं सब देख पा रहा हूँ, सब देख रहा है, ज्वाइन है कॉल, बट मेरे ना कुछ सुनाई दे रहा है। तो दिस इज द रीजन की है। तो आई रिकमेंड कि यूज अ क्रोम ब्राउजर, तो जस्ट गेट अ बेटर एक्सपीरियंस। काफी बार होते हैं एक दो फीचर्स आपके अदर ब्राउजर्स पे शो नहीं होते हैं, तो आई जस्ट रिकमेंड कि यू हैव टू गो विद द क्रोम ब्राउजर। एंड कुछ फीचर्स, काफी फीचर्स ऐसे होते हैं, स्कीम्स होते हैं जो मे बी आज आपको फ्री हैं, तो मे बी आफ्टर 6 months दे विल पेड। थिंग्स आर चेंजेस। दिस इज अगेन द पॉलिसी मैटर कि आज जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि सर ये पेड है, मैम ये पेड है, आप है, तो मे बी आफ्टर द 6 months गूगल की पॉलिसी चेंज की, उसने फ्री कर दिया।
So we can't say कि things are continuously changes. So after 6 months and everything, changes होते रहते हैं, features आते रहते हैं, and at every level. And IT के हैं कि इसमें एक और होता है कि कुछ भी ऐप होता है कि उनको कभी भी कुछ भी रिलीज का होता है, कुछ भी ऐप का अपडेट्स होता है, ऑलवेज गो विद द नॉट अ इंस्टेंट इंस्टॉलेशन, यू हैव टू टेक अ सम टाइम, क्योंकि इंस्टेंट इंस्टॉलेशंस में क्या होता है कि वो बीटा वर्जन होता है, काफी बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं ऐप्स में, तो यू हैव जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 15 days आफ्टर दैट रिलीज. तो वहाँ पे ऐप रिलीज का है कि आपको कब वो रिलीज होना चाहिए, नॉट सेलेक्ट इंस्टा वन. तो आई थिंक ये कुछ की टेकअवेज है कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इट्स मेक आवर थिंग्स बेटर. एंड अगेन लास्ट, इवन मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ, जितना क्लीन आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्ट्रक्चर होगा, जितना अच्छी तरह से होगा, उतनी अच्छी लाइफ होगी. अदरवाइज लाइफ इज गॉट मेस अप. द सेम एक्सपीरियंस आई हैड इन देयर इज वन स्कूल इन मसूरी, वाइनबर्ग एलन, जहाँ पे ये मैंने फेस किया था कि वो कहते हैं कि सर हमने सारी सेटिंग सही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. क्योंकि कोई भी ऐप है वो आपके 3 लेवल पे चेंज हो सकते हैं. एक आपके स्कूल लेवल पे, फिर आपकी जो पेरेंट है आपकी सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, दैट यूजर बेस पे भी चेंज हो सकते हैं. तो गलती से उस यूजर पे वो फीचर ही डिसेबल कर दिया था, ओवरराइड हो गया था, तो उस बच्चे को नहीं दिख रहा था, एंड दे हैव टू शॉक कि हो क्यों रहा है ऐसा. तो ये चीजें होती है, तो इजीली टू मैनेज. दिस इज सम things that I have to share, those I face on the ground level. तो ये आपके साथ शेयर करना था. Over to you, Viva. Thank you so much, Abhishek. I do see 1 or 2 questions. They're very specific questions. तो मैं, if I may request, अगर आपको कुछ बहुत ही specific questions है, जैसे I know रेनू मैम के पास है, कमलेश सर के पास है, if I may request you all to stay for another 2-3 minutes. Because let's not take up others' time, and Abhishek will definitely be helping you out with those 2-3 questions that are remaining. And otherwise, if I may request everybody to quickly turn on your camera so that we can take a group picture. And I hope you have received that feedback form link मैंने जो already chat box में डाल दिया है. Please make sure you fill that in. Once you fill that in, only then you will be able to receive your certificates. You will be able to receive the session resources. So please do make sure you fill that in. And yeah, I mean, please turn on your cameras. Let's take a group picture and let's quickly. Okay, I can see a lot of cameras on now. Great. Yeah, and we can see Bhavna, we can see sharing, all these people who are hiding behind the cameras. Now we can see their handsome and beautiful faces, respectfully. Okay, perfect. Thank you. Let's just quickly smile and take this picture. Lovely. So you will see on our social media handles, you will quickly, I mean, not quickly, sorry, you'll see this post by Monday. So please try to identify yourself, where are you, and do comment on the picture, share the picture with your followers. And also, as I said, we do have a teacher specific session coming up. We will, of course, when we share your certificates, we will share those details with you as well. So please do make sure that you join in that as well. That will be very, very specific to a teacher. How can you make use of that? And thank you, Abhishek. Thank you for the lovely session, and thank you for sparing time. We're going to take up another 4-5 minutes of yours for those specific Definitely. If अगर किसी और को कोई भी specific problem है, तो please stay back. Otherwise, feel free to leave. And thank you so much for joining in. Namaste. I hope you have a great Sunday. So that was brilliant, Abhishek. Very well done. And you know, I always believe that teachers like Yogita and of course Bhavna, these girls are doing amazing things already, and having the admin power, superpower, will make them rise higher. So thanks all of you for joining in. And a lot of you are asking about the certification. Certification will be given once you fill up the form which Viva has sent you. So please fill that up, because that will also help us send you the recording of this session. So please make sure that you fill up this form, and of course then you will stay in our database for further updates on Google and Google Classroom as well. So Abhishek is here, and
Vibha, if you can allow everybody to speak now, they can ask away their questions, whoever is has stayed back. Yes, thank you so much. I'm just going to stop the recording here and then we'll take up the specific questions.